بھائی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کیونکہ گفتگو سنجیدہ بڑی ہو رہی ہے مرزا انجینئر کے حوالے سے. لو جی تیسرا دعویٰ ہے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, اللہ زینہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اس میں وہ کہتا ہے کہ آئندہ بالآخرۃ هم یوقنون میں ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہونے والی موعود پر وحی کی باتیں, اس پر بھی ایمان لے کے آنا ہے. وہ کہتا ہے ایک پورشن لے آؤ, کتنے پورشن میں دکھاؤں آپ کو؟ ہاں جی, اس کے اوپر پہلے آپ لعنت ڈالیں, پھر میں آپ کو اچھا پھر قرآن کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے. خوارج کہتے تھے, جو خوارج تھے نا وہ بھی اسی طرح جتنے بھی فرقے آئے ہیں, مرزا جیلمی قادیانی. قادیانی کیا کہتا ہے؟ قادیانی کہتا ہے کہ بھائی میری نظر سے سمجھو قرآن 1400 سال کے علماء تو ایویں ہی ہیں. میں بتاتا ہوں, مجھ پہ وہ جناب جلاش ٹچی ٹچی لے کے آ رہا ہے وہی, تو میری نظر سے دیکھو قرآن. آپ ایسے کریں نا, مرزا قادیانی کے مرزا انجینئر کے اوپر ڈالے لعنت. تو ختم نبوت کا تو مانا آپ نے پڑھا ککھ نہیں ہے, وہ آپ نے خود اپنی جہالت قبول کر لی ہے. عزی صاحب آپ نے اپنی جہالت خود قبول کی ہے کہ میں نے مسلمانوں کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا, اور مرزا انجینئر کی مکھی پہ مکھی مارنے کے لیے آپ قادیانیوں کی براڈ پہ چلیں گئے ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ ترجمہ بھائی مسلمانوں کا غلط ہے. پہلے نا اور تھوڑا سا پانی پئیں, پانی پی کے اپنے وہ کول ڈاؤن کریں. آپ کی ساری گفتگو میں 95% بات لعنت, جہالت, یہ وہ ہے. آپ میرا نا بات روزہ کریں ہے, نالج کی, نالج کی بات کریں. میرا روزہ ہے, پھر میرا ریلیکس ہو روزہ جائے ہے, گا, لیکن درود میں شریف پڑھیں, پھر درود شریف لعنت پڑھیں. لعنت جو ہے نا وہ میں ایسے خنزیروں کے اوپر خشک گلے کے ساتھ بھی ڈالتا بھائی میرے جب ہوں, علمی بات ڈلواتا بھی ہو رہی ہوتا ہے ہوں. نا اس میں اب پھر آپ ان مجھے چیزوں کو تین تھوڑا باتیں بتائیں, ہاں جی, علمی بات یہ نا, اب تین باتیں ہاں میں نے جی. اس کی ثابت کر دی ہیں. ایک ثابت کر دیا کہ بھائی اس نے کہا قرآن میں کوئی ترجمہ غلط چینج نہیں کر سکتا, آگے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے غلط کیا. مسلمانوں کے خلاف بات ہوگی, قادیانیوں کے حق میں بات ہوگی. میرا ایک سوال یہ ہے کہ قرآن دوسرا, پاک میں کیسے پڑھوں ترجمے سے؟ اوزی صاحب جی بتاتا ہوں, میرا آپ کا سوال پہلے وہ جو یہ تھا کہ جناب قادیانیوں کے ساتھ آپ بات چیت کریں, آپ کیوں یہ اختلافات کو لے کے بیٹھے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ لگ گیا کہ قادیانیوں سے بات کرنے کے لیے جناب وہ تو آپ کی عورتوں کو بھی نکاح اس سے جائز قرار دے رہا ہے قادیانیوں سے, وہ بھی آئے گی ساری بات. اس ویڈیو کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے. سوال تو ہوا تھا کہ بھائی قادیانیوں کا ترجمہ بانٹا جا رہا ہے, پڑھا جائے کہ نہ. اس نے جناب مسلمانوں کا غلط ترجمہ قرار دے کے ان کا ترجمہ 100% قرار صحیح دے کے ترغیب دے دیا کہ بھائی قرآن ترجمے سے پڑھو, ٹینشن کوئی نہیں پاویں قادیانیاں دا, کیونکہ ترجمے سے کوئی چینجنگ کر ہی نہیں سکتا. ہاں چینجنگ کر سکتے ہیں, تو قادیانیوں نے جو اختلاف ہم سے کیا ہے اس کے اوپر بھی ان کا ہی ترجمہ ٹھیک ہے, مسلمانوں تمہارا غلط ہے. اور یہ عزی صاحب آئے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو مسلمانوں کا پڑھا ہی ککھ نہیں ہے, مسلمانوں کا ترجمہ انہوں نے پڑھے ککھ نہیں ہے, لیکن قادیانیوں سے جا کے یہ پڑھنے کے لیے ان کی براڈ پہ چلے گئے. اچھا ویسے آپ عزی صاحب بتائیں, مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ مانتے کیا ہیں؟ کافر. نام لے کے اس کا بولیں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر, مرتد, خنزیر, سور, جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں. میں اس کو دنیا کا سب سے گھٹیا اس ترین کو اور کون سب سے وہ اس کو یہ کون مرزا احمد قادیانی جو بھی ہے, میں اس کا نام بھی نہیں, لینا مرزا پسند نہیں احمد, کرتا ہوں. مرزا احمد تو نام ہی نہیں ہے اس کا. کیا نام ہے اس کا؟ جو میں نے ابھی بولا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی سب سے دنیا کی غلیظ ترین انسانوں میں سے انسان ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بتائیں, یہ تین باتیں میں نے ثابت کی ہیں, اب حوالہ دیتا ہوں میں قادیانی کا. ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ بھائی اس نے ترجمہ ختم نبیوں کی مہر کیا ہوا ہے انہوں نے, یہ آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے تو پڑھنا ککھ نہیں ہے, آپ کو پھر آپ نے کہا ہمیں او بتائیں بھائی یہ سمجھائیں. میں نہیں نہ مری جائے میری تو جان, میں نے صرف علمی نہیں نہیں گل وہ دس. بھائی آپ نے خود ماننا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا او مسلمانوں کا ٹھیک ہے ترجمہ. بھائی, او میرے ٹھیک ہے, میں کیوں نہیں پڑھیا, میں بھی تੈਨੂੰ دس دیتا, واہ مینوں اگلی والا گل دس میں کداں پڑھا. پڑھان لگا میں تینوں روحانی خزانہ جلد 3 کھولنی ہے تو پہلے, ٹھیک ہے. قرآن میرے پاس ہے. مسلمان مسلمانہ دا کتاب کھولو ذرا, جلد روحانی خزانہ جلد 3, مرزا غلام قادیانی مسلمان, ایدی جلد 3 کھولو, تانوں پڑھانا میں.
ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਹਾਂ ਸਫਾ 431 ਐ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਿੰਟ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 431 ਐ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਹਵਾਲਾ। ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 431 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹੁਣ ਸਫਾ 431 सफ़ा 431 पे कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो। तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है। ए मुसलमानों का तर्जमा पढ़ ला जरा उजी। हाँ जी हाँ यानी जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से सल्लल्लाहु। किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूलुल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का। वो कहता है कादियानी, तर्जमा करते हैं नबियों की मोहर। वो तर्जमा कर रहा है खत्म खत्म करने वाला नबियों का। हाँ जी। आपने पहले मेरी बात नहीं पूरी सुनी थी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था भाई मेरे, कि जब उन्होंने नहीं ये आप तर्जुमा मेरा किया। सवाल का जवाब ही नहीं देते तो मैं आपसे क्या आगे यार बात। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आपको सवाल का जवाब, मैं उसमें ही आपका सवाल का जवाब है यार। जी आप बात पूरी तो कर लेने दें मुझे। आप अभी दो लफ्ज़ बोलता हूँ। हाँ जी, बात ये है कि उसके बाद जब मैंने उसको खुद अरबी का तर्जमा गूगल पे जाके उधर से करने की कोशिश की है, वहाँ पे मुझे मोहर नज़र आई है कि वो मतलब उसका मतलब मोहर है, ठीक है। मैंने उसको सिर्फ उनका सोर्स आपको बताना था कि वो उस सोर्स से ये बात करते हैं, ठीक है। अगर वो उस सोर्स से बात करते हैं, वो अपना रेफरेंस उसको पेश करते हैं। मैं उसके बाद अगर वो उस सोर्स से बात करते हैं, ठीक है, जो मेरे तरह के कम इलम लोग उनकी ब्रॉड पे चले जाते हैं और ऊपर जाके उनसे रिक्वेस्ट करके या ऐसे ऊपर बैठ जाते हैं, वो वहाँ पे फिर उनकी बातों में आगे फंस जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे बात कंप्लीट ये करना चाह रहा था जो आपने मेरी 1 मिनट के लिए भी नहीं सुनी, ठीक है। और वो जो मिर्ज़ा ये जो है जेलम का, ठीक है, इन्होंने जो बात इन्होंने उनके उस तर्जमे को इंडोर्स किया, ठीक है। लेकिन उसके साथ उन्होंने उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी चले काफ़ी हद तक मतलब जस्टिफाइड थी। आप लोग मतलब आपकी ब्रॉड पे जब से मैं बैठा हूँ, आप स्वाय मेने और तानों की और बात ही नहीं कर रहे। आप बात मोहब्बत के साथ लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। मैं भी आपकी बात चुप करके सुन रहा था, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अब मैंने कुरान पाक पढ़ना है, ठीक है, मैं उसको कैसे तरीके अच्छे तरीके से उसे कैसे पढ़ सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं किसी माइक का मैं मैं किसी बात का करता हूँ, अब मैं बात मैं करता किसी का हूँ जनाब। उजी साहब आपने मुकम्मल कर लिया बात, आपने फिर मुझसे पूछ लिया। अच्छा अब सुने जरा चुप करके। सुना जी बाबर भाई, यूसुफ भाई क्या कहते हैं। मैं गूगल हाफिजुल्लाह ताला है, गूगल हाफिजुल्लाह के पास गया, वहां पे जाके मैंने लिखा। इनको तौफीक नहीं हुई कि जनाब वो जो किताबें उर्दू की लेके बैठा होता है तराजुम की, उसमें तर्जमे उसने उर्दू के किए, जिसको ऊपर देख के अरबी पढ़नी नहीं आती, वो जो कह रहा होता है कि भाई ये यूट्यूब हाफिजुल्लाह, ये गूगल हाफिजुल्लाह, ये सारा कुछ वो इनको अलकाब दे रहा होता है। तो ये मुसलमान है गूगल। यार फिर वही मैंने ताने यार। हाँ ओके ओके ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਲਮੀ ਬਹਿਸ नहीं ਕਰਨੀ अच्छा नहीं है। अच्छा, ये गल तो सुनो। एक गूगल ट्रांसलेट ते मैं एक ना लिखन लगा वा गोड, गोड दा लफज लिखन लगा और नस गया जे। वो अभी तो मिनी खुदा के ऊपर मैंने बात करनी थी। मिनी गोड जो है ना, कहते हैं ना गूगल के, गूगल पे लेके जाओ, अंग्रेजों के पास लेके जाओ। अच्छा मैंने भी तर्जमा किया है गूगल से उसका मिनी खुदा का, और फिर मैंने मिनी गॉड का भी तर्जमा किया, वहां पे लफज आ रहा है इलाह। तो वो कहता है, अब तुम इसको मान के जाना था तुमने, कि वो कहता है कि भाई अल्लाह ने ये ऑफर करवाई है कि 60 साल की जिंदगी दे दो तो मैं आपको मिनी खुदा बनाने वाला हूँ। वहां पे तर्जमा आ रहा है इलाह का। तो तुमने मिनी खुदा के ऊपर क्यों नहीं तर्जमा वहां पे जाके किया गूगल का। आओ ना मैं तुम्हें पढ़ाऊं जरा कुरान कैसे पढ़ना है तुम लोगों को। पहले तो मैं तुम्हारी जो है वो
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਤਰੋਲ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਛਤਰੋਲ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। अच्छा जी, वो नीचे जहीर अहमद वो भी लिखी जा रहा है। जहीर अहमद साहब से मेरे 2-3 सवाल थे, ये सवाल नहीं कर रहा। अच्छा जी, नीचे टिप टिप कादियानी सारे कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत होगी कादियानी के आने की। ये सुबहान बहुत बड़ा गुस्साख है, ये खुद नहीं बेचारा आ सकता, क्या बेचारा ये करेगा। कड्डो भाई मिर्जा कादियानी नु कड्डो बाहर, करो तबलीग सानू आके अपना वो। सुबहान, तुमने वो बताना था कि भाई वो पहले नबियों की किताबों में हैं वो पेशगोइयां मौजूद है कि इंतशार नूरानियत इतना फैल जाएगा जनाब, औरतों को भी इल्हाम होगा और नाबालिग बच्चे नबूवत करेंगे। क्या भाई ने तुम्हें कहा था कि हवाला दे के जाओ, हवाला निकाल के देना है। वो उधर तो वो मियाँ जो है वो तुम लोगों को बचा लेता है, और बचा के वो इधर उधर कर देता है बात, लेकिन जिया भाई कहते हैं कि चलो की इन्हां दी मंजी ठोकनी है, चलो थोड़ा जा जड़ा ना रह नहीं देना जी। सुभान साहब, वो हवाला तो जिया भाई को दे दें, आप क्यों नहीं दे रहे आप? हाय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है दोस्तों? वस्सलाम वाला व मिन्नत वाला। बात यह है मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे, कि वो जिस ब्रॉड पे बात हो रही थी वो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था, मैंने अर्ज़ की थी कि मैं इस वक्त घर पे नहीं हूँ, मैं रमज़ान जो है ना बच्चों के पास गुजारने आया हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल में मीर अब्दुल लतीफ़ साहब के पास वो फातिह शायद मौजूद होंगे, मैं उनसे लेके तो कर देंगे फॉरवर्ड। जब वो आगे नेक्स्ट गुफ्तगू होगी, जो भी जिस तरह के बयाने होंगे वहाँ पे जो लिखा होगा वो हम पेश कर देंगे। नहीं, अभी आपने वो मीर लतीफ नहीं, मेरी से उनसे आपने गुफ्तगू नहीं अभी है, मेरी हवाला मेरी लेना है? मेरे भाई अभी आपने गुफ्तगू नहीं हवाला हुई ना लेना है? उनसे भी। अच्छा, तो अगर जिया भाई आज तशरीफ ले आए तो फिर कब कैसे देंगे आप हवाला? वो वो जिस ब्रॉड पे बात चल रही थी वहीं पे इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जो भी होगा देखें, सबके सामने है ना, देखें अब नहीं आप नहीं, वो ये आपसे हवाला तलब मेरी बात किया सुने। क्योंकि आपने बीच में टोंट मैं की आपको थी मैं आपको ना कि एक वहां छोटी पे सी है मिसाल देता नबियों हूँ। की किताब। आप जी, वैसे आपका इसम शरीफ क्या है सर? उस्मान अली रिजवी। उस्मान साहब, बात ये है, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। रसूल जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा ये मैं आप कहें तो मैं आपको ये हदीस में भी पेश कर सकता हूँ कि कोई नबी ऐसा जी, नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ना डराया हो। ये दुरुस्त है हदीस या गलत है, या इसको सही मानते हैं आप? हदीस पेश करें, ऐसे नहीं ना, मैं हदीस अच्छा, पेश मैं करूं। चले मैं थोड़ी देर का आपको निकाल के पेश करता हूँ। तो जी अगर इसी तरह, क्योंकि ये नबियों नबियों का कौल होता है ना, अम्बिया का कौल होता है। अगर आपके पास एक ईसाई आ जाए या यहूदी आ जाए या कोई दूसरी कौम का आ जाए जिस वो कहे ये दिखाए हमारी किताबों से कि हमारे नबी ने दज्जाल के फितने से जी, हमें डराया हो, तो फिर आप ठीक उसको है। क्या जवाब देंगे मेरे भाई? हम उसको जवाब देंगे कि भाई बिल्कुल हक बात है जो हमारे नबी ने एग्जैक्टली, फरमाई। एक मिनट, बिल्कुल। बात सुने ना, बात सुने। हमारे नबी ने, हम बताएंगे कि हक बात फरमाई है, एक एक लफ्ज उनका हक है। ठीक है, और जबकि हमारे नबी ने ही फरमाया और अल्लाह के कुरान ठीक ने है, भी फरमा दिया कि इन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ कर दी। क्या ठीक कर है, दी? तहरीफ कर दी। ठीक है। जबकि इधर दूसरी तरफ मिर्जा साहब किताबों के हवाले दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सही बुखारी में है कि अगर जो हम भी अगर मसीह हम भी मऊद यही कहें है। अगर हम भी जी, यही कहें कि आप लोगों ने अहादीस की किताबों में तहरीफ की है, तो फिर इसका क्या हल होगा? वो इंशाल्लाह पहले तो आपको साबित करना मैं पड़ेगा साबित कर तहरीफ। सकता हूँ। दूसरा, जी जी, जी, बात सुनिए ना, वो जी, आप जी, साबित कीजिएगा। दूसरा ये है कि हम आपको ओरिजिनल जो इनके नुस्खे हैं इंशाल्लाह वहां से भी वो सारे हवाला जात दिखाएंगे कि वो किताबें भी आपके सामने पेश की जाएंगी कि भाई हम्म। इसमें कहीं भी तहरीफ नहीं है, बल्कि ये मुद्दई के ऊपर होता है। आप मुद्दई हैं तो आपने साबित करना है कि भाई हम देखो तो फलां नुस्खा है, फलां नुस्खा है, और ये कदीम नुस्खा है बुखारी का, और इसमें मिर्जा साहब ने जो कहा है वो इसमें लिखी हुई है हदीस। जी, आपने है, जी, आपने है वो। मैं आपको बड़ी सारी बहुत मोटी मिसाल देता हूँ। इमाम बहकी की जो एक किताब है ना, मुझे नाम को अभी ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा। हम्म, शबतुल ईमान है, ख्याल में ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, बट उसमें जो हदीस है ना, ये क्या नाम है उसका, कि अगर ईसा और मूसा जिंदा होते
और नहीं उनको वो तो तफसीर इब्न कसीर में भी है, वो नहीं ज़ईफ नहीं 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 मैं वो तफसीर मरदूद है कुछ नहीं, हदीस, मैं मरदूद है कलमी वो नुस्खे की हदीस। बात कर रहा हूँ, जो इमाम बेकी की जो जी कलमी नुस्खा ना, उसके जी अंदर जो है ना वो जो है उसके अंदर मूसा और ईसा जिंदा होते तो उनको मेरी तबा का जो है वो मेरे ख्याल में यही हदीस है इस वक्त मेरे ज़हन में आ रही है। हमारा भी रोज़ा खुलने वाला है, बस दिमाग भी ना पूरा जी पूरा ही इस वक्त काम कर रहा है। तो जी उसमें जो नए हैं नहीं सॉरी आसमान वाला, हाँ सॉरी, जिसमें जिक्र है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं और वो आसमान से नाजिल होंगे, वो वाला वो बाद में जो ये छपाई वाले नुस्खे हैं ना उसके अंदर आसमान का लफ्ज़ उस हदीस में डाला गया है। पता है आपको इस बात का? कलमी नुस्खे में उसके में नहीं है, और वो हमारा हवाला हमारे पास पड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, आप हवाला पेश करें, हाँ वो जी, कलमी वो नुस्खा भी भी पेश करें। अभी तो चूंकि मैं यहाँ से ब्राउज कर रहा था गुजरते ये जो गुजरते यार आसमान आपकी वाला नजर लफ्ज़ है ना, पड़ी। ये आपको मैं आपको बताता हूँ। हम्म, कंजुल अमाल आप खोलिएगा, हाँ जी। कंजुल अमाल में यही हदीस जो है ना, ये जो आसमान वाली बात है, कि जिस हदीस में आसमान का लफ्ज़ है वो कंजुल अमाल में भी मौजूद है। उसका सफ़ा नंबर आप 219, ठीक है? हाँ हाँ जी। 219 है, जो इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हो वो फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो नज़ूल करेंगे मिनस समा आसमान में से, ठीक है? तो आप वो अल्फाज कंजुल अमाल की ये हदीस भी नंबर बाद भी ये आपको भी बाद में ऐड अ, हुआ है, ये भी बाद में ऐड हुआ है, यहाँ हदीस पे भी नंबर बाद, नोट हाँ करें, जी यहाँ पे भी बाद में ऐड हुआ है। हदीस हदीस नंबर नोट करें। मैं नहीं वो मैं आपको देखें, मैं असल में वो ना मेरे आप पास हमारे पास ये पुरानी हदीस किताब भी नोट पड़ी है करें, ना, हमारे पास पुरानी 39 किताब भी पड़ी है। 39,762 आप ना कंजुल कंजुल अमाल। अमाल, आपको पता है कि कंजुल अमाल जो है वो हदीसों का मजमूआ है जो मुख्तलिफ कुतुब से लिया गया है। मैं बिल्कुल आपकी बात हाँ ठीक है, मैंने कहा वहाँ पे देखिए आपने रवाह ये क्या है। एक मिनट, हाँ एक जी मिनट सुभान साहब, एक मिनट मेरी बात सुने। जी जी। आपने दावा कर दिया कि ये बाद में शामिल किया गया, हाँ जी आपने साबित करना है कब शामिल किया गया, इंशाल्लाह। कैसे साबित किया गया, और कलमी नुस्खे हाँ में जी जब ये इस पे बहस हदीस होगी में इंशाल्लाह करेंगे हम लोग मिनस्समा, इंशाल्लाह। लेकिन बात सुने ना, मिर्जा साहब को, मिर्जा साहब ने वहां मिर्जा पे साहब नबी थे तहरीफ ना। की है। जी मैं बताता हूँ ना, हम जी साबित करेंगे कि मिर्जा साहब ने इस नहीं नहीं हदीस में तहरीफ की है, और इसको अपनी कुतुब जिल्द 7 में वो देखें लेके आए, सफ़ा देखें 314। जी 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 देखिए हमारे नज़दीक मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम नबी थे, ठीक है ना, हम उनको नबी मानते हैं, और जो उन्होंने बात फरमाई है बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। अब किताबों में तहरीफ हो जाए तो उसका हम जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। अच्छा, वैसे ये है कि ये जो बुखारी की हदीस आप मिर्जा साहब ने कहा ना कि वो शहादतुल कुरान में भी उसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाला ने क्या मौजूद है। उसी वक़्त उलमा ने पूछा था कि मिर्ज़ा साहब वो किताबें जो भी आप दावा कर रहे हैं वो किताबें अभी मौजूद हैं हमारे सामने, वो हवाला पेश करें कहाँ पे है? नहीं तो मिर्ज़ा उन्होंने नहीं साहब वो कहा पेश था। नहीं कर अच्छा सके थे। उस्मान साहब बड़ी मैं अच्छी बात रही हवाला दे देता हूँ इंशाल्लाह। मैं। मैं गुजर रहा था बस मैं 2 मिनट से, आपको बेटे जनाब मेरा अभी हवाला बेटा दे किसी देता हूँ। काम से आया है तो मैं उसको थोड़ा सा टाइम दूंगा। ठीक, तो इंशाल्लाह ठीक फिर है। कभी मुलाकात होगी, जिंदगी 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 है तो ये बातें तो चलती हैं, लड़ा ना करें। ये नहीं, लड़ाइयाँ मैं शड़ियाँ नहीं सब यहीं लड़ता। पे रह जानी है, गालियाँ शली मैं सब नहीं यहीं पे रह मैं जानी ओ नहीं, मैं क्यों है। दुआ लड़ना में है याद यार? रखिएगा जी। आप सा- लोगों से हमने क्या लड़ना है? पहले ही मरे बस मुके हो, की लड़ने अच्छा देना। चलें फिर मरे मुक्के हैं फिर भी आप हम पर रद्द कादियानी की बॉर्डर लगा के बैठे हैं, मरे मुक्के के ऊपर गाड़ लगा रही है। वो हम यही इसलिए देखें ना, लगा रहे हैं ना कि जो हमारे अपने मुसलमान भाई हैं वो गुमराह ना हो, और फिर कुछ आपकी भी हदायत का जरिया बन जाए हम। मरे मरे मुक्कों ने क्या किसी को गुमराह करना है? जो मरे मुक्के हैं उन्होंने क्या गुमराह करना है किसी को? आप खुद ही देखो सोचो ना, ना। जो किनारे पे हो ना उनको खींचना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? अच्छा ठीक है जी ठीक जी। है। हाँ जी। चले अल्लाह अल्लाह फजल करेगा। दुआ में याद रखें कि जी अल्लाह हाफिज। ओके जी। जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हाँ वबरकातुहू। कैसे हैं आप उस्मान भाई? मेरा ना एक सवाल है कि अब मर्ज़ई किधर जाएंगे? मतलब मतलब आपने नई न्यूज़ नहीं सुनी? क्या? वो ये कहते हैं ना मर्ज़ई के भी जब जी सूरज चांद बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मसीह की निशानियां होंगी। ये बात सुनी आपने? अच्छा अच्छा शाह जी, पता क्या है, जी जी। जिन तारीखों का जिक्र किया गया है ना, किया गया है हदीस हाँ, में, तो जो है कि जो कि सूरज और चांद ग्रहण चलते आ रहे हैं,
उनके उलट होगा। हदीस में ये है, वो हाँ, हदीस अब नहीं ये है, बात मैं बता माज़रत। रहा हूँ ना, अब जैसे ये सूरज और चांद ग्रहण जैसे अमेरिका में हुआ है ना, जी। जनाब चीमे ने नबी होने का दावा कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब ये चीमे को अच्छा। मानेंगे या मिर्जा मसरूर को मानेंगे? ये तो किधर गए? अच्छा शाह जी, ये वैसे बड़ी न्यूज़ है, और ये चीमा जो है वो काफ़ी देर से अपने इल्हाम और ख्वाबें सुना रहा था। बस तो अब उसने 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 दावा सूरज नबूवत श्री उसने सूरज और हाँ। ग्रहण का देख के उसने दावा कर दिया है। अच्छा, अच्छा। तो शाह जी वो वायरल हो गया है, वीडियो वायरल हुई है? वीडियो वो ना जरा हम उसको ना जरा सिस्टम के अंदर ला के उससे बड़ा कुछ लेके फिर हम वायरल करेंगे। हाँ। और दूसरी बात जिसके लिए मैंने कॉल किया आपको, ये नीचे जो जहीर अहमद बैठा है ना, मेरा इन जमात अहमदिया से चैलेंज भी है और मेरी इनसे सवाल भी है कि जब ये 4 डाकुओं वाला उस्मान भी ज़रा मुझे थोड़ा-सा तशरीह कर दें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 4 डाकुओं ने पकड़ा था, ये क्या था? वो क्या स्टोरी है? 2 चोरों के साथ मिर्ज़ा साहब कहते हैं उनको लटकाया गया, 2 चोरों के साथ थप्पड़ मारे गए, वो बात कर रहे हैं ना आप? जी, 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 जी। जी, जी। उनमें से एक जमात कादियानी का मुरब्बी, कम अक्ल वाला, उसने कहा है जी जब वो डाकुओं वाला मसला बना था मैं मौके पे मौजूद था। अच्छा, अच्छा। जी, जी। ये किस किस दजल को लुकाएंगे? वो कहता है जब पहला नेज़ा मारा गया मैं मौके पे खड़ा था। शाह जी ਇਹਨਾਂ शाह जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਈਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਰਮ ਭੇਜਾਂ? ਭੇਜੋ, 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 ਭੇਜੋ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਐਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਔਲੀਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਠੋ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਠੋ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा ज़हीर साहब नीचे लिख रहे हैं लिबास भी आसमान से उतरा। ज़हीर साहब वो सारे सवालों का जवाब हम देंगे, तो आप तशरीफ तो लाया करें ना भाई, तो फिर ही हम बताएंगे कि कादियानी क्या क्या लोगों को दजल देते हैं। वो कहता है एक ब्रॉड पे मैंने सुना था, कहता है जी वो औरत के वो अंदर पहले से ही वो मौजूद होते हैं ग्लैडर, पता नहीं क्या नाम है उसका भाई, एवं मैं जो वो ग्लैंडर को होते हैं उनकी वजह से दूध उतरता है, वो आसमान से नहीं होता, वो फलां से नहीं होता, वो लोहा जो है वो भी आसमान से अल्लाह ने नाजल किया है। भाई इसका क्या है, उसका क्या है, वो सारे हम सवालात के जवाब देंगे। लेकिन ये है कि आप गुफ्तगू तो आके करें। जी असफ भैया मौजूद हैं? जी उस्मान भाई, जी जी। अच्छा अच्छा, तो मुझे थोड़ा टाइम देंगे, मैं फिर ना टाइम हो गया है और मैं फिर नमाज भी पढ़ लूँ, तो फिर मैं थोड़ी देर के जी लिए आता हूँ। जी आप ठीक है। गुफ्तगू करें, मैं नमाज। ठीक, बहुत शुक्रिया सब। जी जज़ाकल्लाह उस्मान भाई।
बस कोई उस्मान भी अगर आता, कोई ऊपर कॉल पे आता तो चले बात भी बंदा करता है। अब ये लोग आते ही नहीं, नीचे टैक्स मजदूरी करके चले जाते हैं। अच्छा ये फरीद साहब भी एक आए हुए हैं, पता नहीं कब से इनका मैसेज आया हुआ है। डालें यार, कॉल को डालें, कोई इल्मी किताबी हमें भी कोई गुफ्तगू सुनाए कोई। अगर कोई नीचे कोई मिर्जा जूनियर जेल में कमाने वाला बैठा हुआ है या मिर्जा सीनियर कमाने वाला बैठा हुआ है, कॉल डालें।
يا رب يا رب يا كريم أنت كريم يا الله يا كريم أنت كريم يا رب. سوريا من سوريا شمال سوريا مخيمات السورية غالي. أنا من سوريا من شمال المخيمات السورية يا رب يا الله. الله يهديك يا 26. الله يرزقك يا 26. ارحب يا 32. ارحب يا دخولك ملكي يا 32. ارحب يا 42. ارحب يا 42. دخولك ملكي يا 42. الله يرزقك يا رب. الله يحفظك يا ابن العز يا رب يا كريم يا رب يا رب. عيد مبارك علينا وعليك يا غالي. يا رب يا رب يا الله يا رب يا رب يا كريم يا كريم يا كريم. تاج على الراس تاج على الراس يا اخوان. ارحب يا 26. شكرا لك يا غالي. تحياتي لك يا ابن العز. تحياتي لك يا غالي. الله يرزقك يا ابن العز. الله يرزقك يا غالي. الله يرزقك يا غالي يا رب يا كريم انت كريم يا رب. شدوا معنا يا اخوان يا رب يا رب يا رب يا رب. اكتبوا يا رب اكتبوا يا الله اكتبوا يا الله. الله يرزقك يا رب. الله يحميك الله يحميك يا ابن العز يا رب يا رب. ارحب يا 12. ارحب يا 12. ارحب ارحب يا 12. ارحب يا 12 يا رب يا رب. عيد مبارك علينا وعليك يا اخوان. عيد مبارك علينا وعليك يا ابن العز. الله يرزقك يا غالي. ارحب يا 40. دخولك ملكي يا 40. دخولك ملكي يا ابن العز يا رب. عيد مبارك علينا وعليك يا غالي. كل عام وانتم بخير يا اخوان. كل عام وانتم بخير يا اهل الخير. كل عام وانتم بخير يا اهل الخير. نيالك يا فاعل خير. نيالك يا فاعل خير. يا رب يا رب. मेरा जो है ना तमाम रसूलों पर ईमान है. ओके अवान जी, ये रसूल महमूद जी को क्यों